Hackett Group Inc., a leading Gen AI strategic consulting and executive advisory firm, today announced the acquisition of LeewayHertz, a highly recognized provider of advanced Gen AI solutions. This acquisition marks a significant milestone in the Hackett Group's aggressive strategy to become the leading architect of its clients' Gen AI journeys. This transaction combines Hackett Enterprise digital transformation world-class IP with LeewayHertz general AI advanced solution and implementation capabilities, as well as their respective market-leading AI XPLR and ZBrain.ai software platforms. The general AI consulting and software platform combination is expected to deliver a comprehensive end-to-end capability that accelerates and enhances its clients' ideation through implementation AI initiatives. This partnership has the potential to redefine the way AI solutions are conceived and deployed at scale. The right people. Then on top of that, people need ability to be able to generate new content. Generative AI is what is being formed in ChatGPT. When this came out, this is where the AI revolution picked up everywhere, and people started to adopt AI in businesses and startups and everywhere. Especially at startups, people are building code with AI. They're writing new development programs. They're writing new software. In a supply chain company, they are reviewing invoices. They're looking at account payable, account receivable. They're looking at every process in a company, and then at every process, they're trying to see how we apply AI to help us and make it better. So every day, every organization is trying to see if they can apply AI in any of its processes. So that's how it is being used at a lot of organizations. And to us, imagine having AI capability to teach people and have them access to a teacher-like experience. So a lot of people are not able to get access to school or good education. By creating a good AI model, you can deploy it in their hands, in their phone, smartphone, or computers, and now they're able to ask complex questions and then get an answer out of it. So this is not possible if you want to do it at scale. But with such technology, you can actually do it at scale and make everybody has access to the same level of information which only a few might have. So this is the kind of adoption possible by bringing. मेरा नाम आकाश टकियार है, मैं LeewayHertz टेक्नोलॉजी का फाउंडर और CEO हूँ। सर, आज टेक्नोलॉजी में MOU साइन हुआ है, तो उसकी ज़रूरत क्या पड़ी और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीके से काम करेगा, और आम जो एक कस्टमर्स होते हैं, कंपनियां होती है, स्टार्ट करती है, तो उसको कितना फ़ायदा है? तो आज जो ये एक्विजिशन हमने अनाउंस करी है, ये हैकेट ग्रुप ने LeewayHertz को एक्वायर करा है, और उनका मेन मकसद ये है कि वो अब अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स के साथ हमारे साथ मिलके पूरी AI की जो साइकिल है, पूरी जर्नी जो है, एक आइडिया को सोचने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने तक, उस पूरी जर्नी को हम पूरा कंप्लीट कर सके। तो हम लोग उनके साथ मिलके कस्टमर के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम पहले उन्हें कंसल्टिंग देते हैं, फिर हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उनके लिए डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमें जो भी यूज़ केस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा स्कोप है जी। इन फ्यूचर जो आपका द्वारा असेंबल हुआ है, उसमें कितना उनको बेनिफिट मिलेगा? मुझे लगता है कि बेनिफिट तो इंडिया में जिस तरीके से हम इतना टैलेंट ट्रेन कर रहे हैं AI पे, और हम लोग इतनी हायरिंग करना चाहते हैं, और साथ में नए डेवलपर्स, इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग डेवलपर इस स्केल पे, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में लग सकें, मुझे लगता है हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि हम काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। साथ में हम यहाँ से तरक्की देखते हैं, नॉट सिर्फ इंडिया की बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसके अडॉप्शन की। सर, एक उसमें क्वेश्चन है रिलेटेड कि इंश्योरेंस सेक्टर और आजकल बैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, AI का वहाँ यूज़ होगा। 3 सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, एक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मेडिकल।
तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, जो फ्रॉड है वो कई सालों से हमेशा से ही किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होते आ रहे हैं, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन बनाती है गवर्नमेंट, या हम लोग जितना भी इसके लिए उसके अगेंस्ट काम करते हैं, वो भी बहुत ही तरक्की से हो रहा है और उसके ऊपर भी बहुत ही इन्वेस्टमेंट और थॉट प्रोसेस दिया जा रहा है कि हम कैसे उन फ्रॉड्स और इन एस्पेक्ट को रोका जाए। आई थिंक कि हम लोग जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है एआई में, रेगुलेशन में, पॉलिसीज़ में, एडॉप्शन में, लोगों के समझने में, इन सारी चीज़ों से ये सब चीज़ें अभी एकदम कम होने वाली हैं। आकाश जी, आपने जिक्र किया था कॉलेज डेज का कि तब से आप इस कंपनी को रन कर रहे हैं और आज एक एक्विजिशन किया है, जी। तो कितना इमोशनल आज आप फील कर रहे हैं कि इस एक्विजिशन के बाद इस मुकाम पर कंपनी को लाएं, और किस तरह से आगे के सालों में और नेक्स्ट जब हमारी पीसी या मुलाकात होगी तो किस तरह से हम देखते हैं कंपनी को कहाँ तक आप ले जाने के, जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक? जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने क्वेश्चन पूछा। मैं कॉलेज में जब था तो सोचा कि खुद अपना ही कुछ करना है, क्योंकि थोड़ा उस समय जॉब मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं थी अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो मैंने वो उस समय पूरी अपने फादर के साथ लग के मेहनत करी और मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिले और उन्होंने मुझे हेल्प करी कि हमें कैसे एक अच्छी गुड एंटरप्राइज स्केल पे इंडिया में रह के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही प्राउड है कि मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा इस पूरे प्रोसेस में और यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से आगे सिर्फ इंडिया और जो एआई एडॉप्शन है वो सिर्फ तरक्की की राह पे रही है। हर जगह, हर प्रोसेस, हर जगह पे हम एआई अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे एआई हमारे मैसेंजर से लेके ईमेल तक, कंप्यूटर तक, फ़ोन तक, घर के टीवी तक पहुंचता जा रहा है। तो वो एडॉप्शन यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही होगी। आज से कुछ साल बाद अगर हम मिलेंगे, मुझे लगता है यहाँ से सिर्फ आप तरक्की और इंडिया की तरक्की और इसी को देखेंगे। बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में हैकेट किस तरह से सर्विसेज बेटर देने वाली है, किस तरह से आप देखते हैं अपनी कंपनी को और से बेहतर बनाने के लिए क्या करने? हैकेट और लीवेहर्ट्ज़ मिलके हम लोग क्योंकि एक कंबाइंड पूरी एंड टू एंड साइकिल ला पाए, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो या तो एक पार्ट पे काम करती हैं कि वो सिर्फ कंसल्टिंग देते हैं या फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हैकेट और लीवेहर्ट्ज़ की एक्विजिशन की वजह से हम पूरा एंड टू एंड जर्नी संभाल सकते हैं, किसी एआई को सोचने से लेके उसको लगाने तक, फिर उसे मेजर करने तक। तो वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। सर एक डिमांड है, आपने जो एआई का प्रशिक्षण दिया है तो उसमें कंपनी की जो भी कंपनियां आपसे जुड़ती हैं उनको कितना मोबिलाइजेशन आपके हिसाब से मिलता है और उस टेक्नोलॉजी का फायदा सस्टेनेबिलिटी में कितना उसको आगे इन फ्यूचर होगा? कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, डे बाय डे नई चेंज आती है, लेकिन इन फ्यूचर स्टेबिलिटी में कितना उसको फायदा मिलेगा आपके उससे? और जो स्टार्टअप है, स्टैंडअप है, कंपनियां जो चलती हैं उसके हिसाब से आपको उसमें कितनी जरूरत है आपके टेक्नोलॉजी की? थैंक यू। मैं हमारा जो अभी फोकस है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। प्रॉब्लम चाहे किसी बड़ी कंपनी के एस्पेक्ट में हो या फिर एक स्कूल या कॉलेज की हो या फिर एक मेडिकल डिस्कवरी की हो, हम जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम समझते हैं उसको हम देखते हैं कि क्या इसको एआई से सॉल्व किया जा सकता है। सारी प्रॉब्लम एआई से सॉल्व भी नहीं की जा सकती, जैसा आप जानते हैं। तो हम लोग कोई ऐसा सारी चीजें अपने प्लेटफॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, हम इन ऑर्गेनाइजेशन या स्टार्टअप को हेल्प कर पा रहे हैं बहुत ही जल्दी फास्टर प्रोसेस में डिस्कवर करने में कि कहाँ एआई लगाएं और कैसे लगाएं और उसका कोई रिजल्ट है या नहीं। अगर हम ये साइकिल छोटी कर दें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया है, तो हमारे जो बेनिफिट है उस कंपनी को वो जल्दी आएगा। इंस्टेड ऑफ कि अगर वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगेंगे, तो इतनी देर में तो टेक्नोलॉजी बदल जाती है। एआई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं कि रोज बदल रही है, रोज नई एडवांसमेंट हो रही है। तो प्लेटफॉर्म हमने बनाया ही इसलिए है कि हम वो टेक्नोलॉजी पीछे बैकग्राउंड में स्विच कर सके, ताकि अगर नया अभी चैट जीपीटी का नया मॉडल लॉन्च हुआ है तो हमने इमीडिएटली उसको स्विच कर दिया कस्टमर्स के लिए और उनको इमीडिएटली वो वैल्यू मिल गई जो उन्हें चाहिए। तो उनको बाकी कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म केपेबल है एक क्लिक में स्विच करने के लिए, इसलिए ये हो पाता है। प्रोसेसर कितना इफेक्टिव है और है क्या?
हाँ, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हम अपने कस्टमर जो हैं वो हमें कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, हम एआई लगाना चाहते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, उनको पहले समझते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमें एक अपने लिए एक टूल बनाना है जिससे हमारे लिए एचआर स्क्रीनिंग हो सके और रिज्यूमे पार्ट्स हो सके, तो फिर हम उनको पहले समझते हैं कि आज उनकी कंपनी में वो काम कैसे हो रहा है, आज वो रिज्यूमे स्क्रीनिंग कैसे कर रहे हैं, आज वो एचआर प्रोसेस कैसे चला रहे हैं। जब हम ये समझ लेते हैं फिर हम अपने प्लेटफॉर्म में एल्गोरिथम लिख के उस प्रोसेस को एंड टू एंड चलाते हैं और वहां पे हम बीच में जहां एआई लग सकता है वो हम इनेबल कर देते हैं। तो फिर हम एआई या जनरेटिव एआई स्पेशली हम फोकस्ड हैं, चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लगा के उन स्टेप्स को बारीकी से देखते हुए उसको कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं वो हम कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा कंसर्न ही ये है कि हमारा डेटा कभी लीक ना हो, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उनके प्राइवेट एनवायरनमेंट में चलता है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि क्लाउड में कहीं चल रहा है, डेटा कहीं और जा रहा है। आप अगर एक कंप्यूटर यहाँ पे इस रूम में भी रख लेंगे तो आप उसके ऊपर भी हमारा प्लेटफॉर्म चला सकते हैं। तो डेटा कभी बाहर निकलता नहीं है और कभी एक्सेस नहीं होता आउटसाइड योर फायरवॉल।